Okay, so let's say we are talking about periodic table. Then I'm just trying to write the periodic table. Okay, so this is going to be okay. So this is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, and francium is radioactive. Okay, and then we are going to have beryllium family, and we are having magnesium, calcium, we are having strontium, barium, and radium. And radium is also radioactive in nature. Then we are having from here scandium, titanium. सर आपने पीरियोडिक स्टार्ट किया है ना? Okay. इसी में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा एंड देन वी विल डू द रीजन, है ना. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. थोड़ा सा स्पेस कम करना पड़ेगा. सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, copper, zinc. ठीक है. This is third 3D series. Then we are having yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, tectinium, ruthenium, rhodium. Then we are having, let's say, palladium. Then we are having argentum, silver, or cadmium. ठीक है. Then we are having lanthanum, and from after that the lanthanide series will start. So this is lanthanum. Okay. Lanthanum, we are having hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, and mercury. And here we are having actinium and rutherfordium. बस इतना याद रखना है. This is 104. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर गैलियम और जर्मेनियम क्यों नहीं आएगा? अरे आएंगे भाई, इधर पी ब्लॉक नहीं लिखा है. अच्छा अच्छा, एस और डी लिखा है. अरे रुक तो जाओ भाई. हाँ ओके 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 सर, सॉरी. 39, 48. This is 57. This is 72. This is 80, 89, 104. ठीक है. Now we are having, let's say, over here now we are having P block. तो P block में first है boron family. So boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Then we are having carbon family. So carbon, we are having silicon, germanium, SN, tin, and lead. Then we are having nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Then we are having oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Then we are having fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Then we are having helium, right? And this is helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. Okay. Now these periodic, let's say you have to remember the, let's say, atomic number of these inert gases. So 2, 10, 18, 36, 54, 86. This is, I have already told you in electronic configuration. So you have to remember that. Now the position of hydrogen is not clear.
The position of hydrogen is actually, it is showing the similarity with alkali metals as well as it's showing similarity with alkali metal as well as halogens. तो alkali metals के साथ कैसे कि ये है ना H2O बना रहा है, जैसे ऑक्साइड से रिएक्शन करके है ना ऑक्साइड बनाया, H2S सल्फाइड बना रहा है. This is all the like sodium Na2O, Na2S like this, and it is having similarity with halogen, like it is having H2 molecule like F2Cl2 है ना. So this is forming diatomic molecule. It is having the tendency to form H minus, right? So it can occupy it. It can also gain an electron to form H minus, similar to F minus Cl minus. And these compounds of hydrogens are covalent in nature. Those are not ionic, right? Inert इनके alkali metals के क्या हैं? Ionic. तो hydrogen के क्या हैं? Covalent, right? HCl is covalent or ionic, covalent. ठीक है. तो इसलिए the position of hydrogen is kept in between over here in the let's say periodic table. Okay, and that is kept like this in between. Now this is going to be your S block. And this is going to be your D block. And this is going to be your P block. Now the hydrogen is kept in first period, so this is first period. Okay, so if I'm not right, that is going to be our first period, then this is going to be second period, right? And this one is going to be your third period. We can just imagine, okay, right? Drawing line is not going to be looking good. So in first period we are having 2 elements, second period we are having 8 elements, third period we are having again 8 elements, fourth period we are having 18, fifth 18, and 6th and 7th are having 32. So we have to write, let's say, what is lanthanide and actinide. So lanthanide 4F series is going to be cerium, sodium, mesodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dy, dysprosium, holmium, erbium, this is I have to check TM किसको बोल रहे हैं. So this is okay. Now 5F, and this is lutetium. So this is going to be over here 58 to 71. Now 5F series we are having this is going to start from thorium, so thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium. American, curium, berkelium, californium, Einstein, so Einsteinium, delete Einstein,
I have to check this part. Wait. Let me. So 1 or 2 I am just missing. Anyway, this की ट्रिक है, मैं अभी आपको ट्रिक बता दूंगा याद करने की. So I am maybe some symbol or something I am just missing. Okay. हाँ, Einsteinium, Fermi है ना, that is going to be Fermi, Mendeleev. These are the names based on the names of scientists है ना. Nobel, Alfred Nobel के नाम पे Nobelium and Lawrencium. So all the way this is based on, let's say, name of planets: America, Curium, Madame Curie; Berkeley, California, Einstein; Fermi, Mendeleev; Nobel, and Lawrencium, Rutherfordium. So these you can see the names of scientists, these are given. इसके आगे भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पे ही हैं, बट टिल 104 इट इज सफिशिएंट है ना. उनको आगे हमें पढ़ना नहीं है, उसके आगे right, we don't have to worry about. So this is going to be 89 and this is going to be 103. Sorry, 90. 89 we have already. 90 to 103. The remembering thing is इसकी rhymes हैं, आपको शायद पता होंगी है ना. So this is hydrogen. If we are going to keep it here, then this is Alina, Alina, Ki, and all these are in Hindi. So some I have picked whatever I just feel like कि जो मेरे दिमाग में stuck हो गया वो मैंने याद कर लिया, right? So some of them you would have heard, some of them you would have not heard. तो doesn't matter. What you need to do is जो तुम्हें याद हो जाए बस उसको आप अपने दिमाग में बिठा दो, ठीक है. कोई भी हो सकता है, कुछ भी, doesn't matter. So this is Halina की रब आरवी से फरियाद है ना. फरियाद is like पुकार kind of. So FR. Cesium से, this is RV rub. So Halina की से की, रब से फरियाद. Then we are having है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे MG कार स्कूटर बाप रोए. Okay. Then we are having इसमें कभी कभी ऐसे भी इसका एक और है शायद, बेटी मैगी का, मैगी MG का सर बड़ा 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 है ना, ऐसे का सर स्ट्रॉन्सियम बड़ा. So whatever you feel like you can just remember. So and this is science teacher very cruel, science teacher very cruel. मांगे फी कोई नहीं क्यों जाना है ना. कोई means cobalt, नहीं निकल, क्यों कॉपर है ना, क्यों Cu, and जाना Zn. Science teacher very cruel, मांगे फी कोई नहीं क्यों जाना. That's it. And then it is over here, ए जर्रे नवाब, ए जर्रे नवाब. So this is somebody saying for someone, right? This is actually old mother is saying to his her son कि यार ये जो है ना नवाब जो है वो आए नहीं देखने है ना. So she is alone at home and somebody has not the son has not visited her, so that's why she is saying ए जर्रे नवाब मौत मोलुडिनम तक रूठे रहे, ए जर्रे नवाब मौत तक रूठे रहे. Then this she is cursing कि क्या हो आगे, पड़े आग में कूदे है ना. पैलेडियम Ag and कैडमियम, पड़े आग में कूदे. So ए जर्रे नवाब मौत तक रूठे रहे. So देखने भी नहीं आए, अब ये कूद पड़े हैं ना, आग में गिरे, right, kind of. So पड़े आग में कूदे. Now from here we are having lanthanum. So this is la hafta. So somebody is threatening to another one. So la hafta varna re udhar idhar. Osmium OS आ रहा है उधर लेकिन but this synchronized. So la hafta varna re udhar idhar पिटाई होगी. And पिटाई होने के बाद कैसी आवाज आएगी, out. So this is going to be like
La hafta vanna re udhar idhar I hogi, and this is bold AU. Ouch. Okay, now we can say over here. Now this is but there is one two or again two rhymes. Baigan aloo gajar, huh? हाँ सर वही बैगन आलू गाजर इन थाली like this, और भारत के all गंजे, भारत भारत all गंजे लगाएं, so this is silent, k is silent, लगाएं Indian तेल, so this is going to be भारत के all गंजे लगाएं Indian तेल, or you can say बैगन आलू गाजर in थाली. Okay, now that then over here this is कहें शिव जी, है ना, कहें शिव जी सुनो पार्वती, so कहें शिव जी सुनो पार्वती. Now this is नाना पाटेकर ऐसे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी जैसे. Okay, so this is for just synchronization, so you can remember this आलू ले लो कांदा ले लो type one movement from the movie, है ना, so it's like नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी जैसे. Okay, now उससे टीपो, उससे टीपो, टीपो is like cheating, you know, just cheat from someone else, so उससे टीपो. Okay. And then again I told you that whatever I learned just in parts. तो किसी ने मुझे ये बताया, किसी ने वो बताया, तो कॉलेज स्कूल टाइम पे ऐसे याद हो गई, है ना. तो this is like for clutch brake install AT&T. So for yeah, this is the, let's say, AT&T a company, and for that this is kind of advertisement for clutch brake, cross clutch brake install AT&T. And that I remember normally. So inert gases remember रहती हैं, तो इसलिए then there is normal helium, not a single, let's say, rhythm. Now we will talk about here. This is सीने पर नदियाँ, सीने सेरियम पर यार नदियाँ, प्रेम की प्रेम समाई यूं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ. So the person is very happy. So सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ. Then it is saying for two person, that is Ira and Yaqub. So Ira and Yaqub. So for Ira, this is saying, this is the story of Yaqub actually. So Yaqub is, for Yaqub I am saying, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ. So Ira, तुम्हें Yaqub लूटेगा. That means your heart is going to be taken by Yaqub. So Ira, तुम्हें Yaqub लूटेगा. And again, this is just heard by someone or something, so you can remember easier way to, or if you have another lecture rhyme, then you can remember that one. I have no like emotional feeling you should remember mine. Okay, so just remember it, try to remember one thing. So सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, इरा तुम्हें याकूब लूटेगा. ठीक है. And this TM is thulium, so this is little bit different, है ना. And this TL is we are going to say थैलियम, है ना. हाँ, थैलियम. तो इसमें देखो क्या है, यहाँ थैलियम में TL आ रहा है ना, तो आप TH सोच रहे होगे थैलियम वगैरह, है ना. एंड थैलियम हो गया. टेलुरियम ये है TE, राइट, टेलुरियम. तो यहाँ TL सोच सकते हो, समझ लो आप, है ना. सो दिस इज लेट्स से लिटिल बिट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर थूलियम. ओके, थैलियम थूलियम, राइट. एंड नाउ यू ऑलरेडी हैव यहाँ पे, सो दिस इज TM. सो ओके, थोड़े बहुत हो सकता है करेक्टर थोड़े बहुत याद ना रहे, बट ठीक है, एक दो बार लिखोगे, दो चार बार लिखोगे, याद हो जाएगी. सो दिस इज नाउ द 5F सीरीज. सो दिस इज थॉर, है ना. प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्टियम है, बट इसका नाम है PA, मतलब सिंबल है, और PR प्रोसोडियम के लिए है. सो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है. PR यहाँ प्रोटेक्टिनियम है एक्चुअली. दिस इज, so you might be thinking this is PR, but this is PR, this praseodymium. So this is protactium. So Thor protects uranium, Neptune, Pluto.
uranium, neptunium, plutonium. America, Cure, Berkeley, California. So this is like not in sequence. 3 small, let's say, rhymes. So Thor protects uranium, Neptune, Pluto. America, Cure, Berkeley, California. And then another one, Einstein Fermi made novel laws. Okay. सर सेकंड वाला रिपीट करो. This one, हाँ सर. American है ना, this is sorry, Americium, Curium, Berkelium and Californium. तो सर आपने उसके लिए क्या बोला था? America, Cure, Berkeley, California. So these are the 2 towns, है ना. So maybe some disease is there, so we are saying that America is able to cure these 2 towns. Okay. These 2, let's say not town, let's say bigger cities. So America, Cure, Berkeley, California. Einstein Fermi made novel laws. Okay. Anyone who remember this periodic table जिसको पहले याद हो? सर मुझे मतलब ग्रुप 1 मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट सारे याद है, फिर अभी के लिए, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट लाइन याद है बस. ओके, गुड, सफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा और भी याद कर लोगे तो और अच्छा हाँ. होगा. तो क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर ने ऐसे. नहीं याद है. हाँ पायल? सर मुझे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स नहीं याद है, बाकी याद है. ठीक है, वेरी गुड. ओके, आपकी आवाज वैसे कम आ रही है थोड़ी सी, है ना. ओके, सो ठीक है, तो गुड इनफ. ठीक है, थोड़ा सा ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इसके पूरा 11 12 में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब आएगा. तो एनीवे, तो जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है ना, अलग अलग राइम बताई होंगी. मेरे को पता है हर टीचर के अलग अलग स्टाइल है, और इसमें बहुत सारी राइम्स हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, राइट. सो यू कैन रिमेम्बर वॉट एवर, यू कैन सर्च इट इफ यू फील लाइक कि आपको और चाहिए, और यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, है ना. सो यू कैन रिमेम्बर इट. नाउ आई विल टॉक अबाउट सम. हाँ सर 48 पे कैडमियम है ना, 48 पे. हाँ, सर कैडमियम के बाद क्या है? कैडमियम के बाद इंडियम, ये ना, ये वाला पूछ रहे हो ना. हाँ. Now there is Okay. a boundary line where we are going to say, see, S block, D block and F block all are metals. ठीक है, S block क्या है? Metal. D block क्या है? Metals. And F block भी क्या है? Inner transition metals, तो metals. Now in P block we are having metals, non-metals and metalloids. So there is a boundary according to properties. ठीक है, there is a boundary we are going to say, okay, ये जो है ना, ये थोड़ा मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं, और ये थोड़ा नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं, लाइक दैट. ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दे रखा है सीडी टाइप की. यहाँ 2 सेलेक्ट करो, फिर इधर 2 सेलेक्ट करो, मतलब ये 2, फिर इधर 2 सेलेक्ट करो, है ना, ये, फिर इधर 2 सेलेक्ट करो, ऐसा, राइट. दिस इज गिवन, है ना, एंड दिस इज 1. सो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एनसीईआरटी में हो सकता है थोड़ा आगे कुछ दिया हो, बट ये रफ बाउंड्री है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन जो है ना, एक्चुअली सिलिकॉन यहाँ पे कंसिडर किया है मेटलॉइड की तरह, बट सिलिकॉन जो है वो एसिड की तरह, मतलब नॉन मेटल की तरह ही रिएक्ट करता है ना, उसके SiO2 एसिडिक इन नेचर होता है. तो कई जगह पे ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये मेटलॉइड, मतलब मैं किस सेंस में कंफ्यूजन बोल रहा हूँ कि देखो, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. देन यू विल बी थिंकिंग दैट मेटलॉइड के ऑक्साइड जो है ना एम्फोटेरिक होंगे, बट ऐसा हमेशा सही नहीं है, राइट. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ ए बाउंड्री, जस्ट रिमेंबर इट, नॉट ए वेरी हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री, बट ओके. तो इसके बाद ये क्या है, सब मेटलॉइड नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स इनर्ट गैस को छोड़ के, तो इनकी रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से जोड़ेंगे, और बहुत सारी चीजें हम बताएंगे आगे. सो दिस इज मेटल्स, है ना, and non-metals and metalloid. Now I'll talk about इसमें right period and block groups, है ना. So we are having period, or you can say row. So 7 rows, and we are having 7 rows. में first one is very short,
2 element. Second period is having short. It is having 8 element. Third period is also short. That is also having 8 elements. So this is now fourth period is long. So that is having 18 element. Fifth period is also long. That is having 18th element. 18 element, and we are having 6th and 7th period. So very long. So that is having 32. Okay. So till now we are having 118 elements का space है और ये पूरा भर गया है अभी. Now they have completed the, यहाँ से यहाँ तक हमने बताया नहीं है 105 से, but that is not necessary, but just for in general knowledge कि till 118 तक they have discovered, they have identified. अब कोई नया element आएगा, then this is going to start filling somewhere from here. So they will be saying, but I think till here you can remember 118 element मिल चुके हैं. Now we are having period के बाद row, column and groups. So you can say so we are having 18 group, and this is simply named like first, second, third. So we are going to say in periodic table like this. So standard form is this. This is going to be first, second, third, fourth, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, and this is going to be 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, and 18th. So all these are, let's say, groups. ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के मोटा मोटा मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है. एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, राइट, एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है. The position of F block elements is given in periodic table is this, है ना, third group. So F block elements belongs to third group. All F block elements belongs to third group. So third group is longest group, no, or largest group you can say. क्यों? उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? So you can see here 1 2 3 4 are already there, and then you are having this 28. So this is going to be 32 elements. है ना, 32 elements कैसे? 4f and 5f series यहीं पे है. This 4f and 5f series को बोलते हैं according to the names lanthanum. We have seen, so that's why it is called lanthanide, or we are having this is lanthanide series. And this is actinide. Now after uranium, the elements are, all elements are synthetic elements. So after uranium, this is 92. So trans uranium elements. So this is classification of elements. I'm covering some points. You know, after uranium, all elements are, you know, after uranium, those are called all elements trans uranium element. Those are called trans uranium.
are synthetic. And after bismuth, all elements are radioactive. So it's just not, it's not like कि बाकी सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं है ना, जैसे किसी किसी का कोई पर्टिकुलर आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, बट यहाँ पे क्या है, बिस्मथ के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई स्टेबल, लेट्स से यू कैन से आइसोटोप हो और जो रेडियो एक्टिव ना हो. सो ऑलमोस्ट ऑल लेट्स से आइसोटोप्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव. समझ में आई मेरी बात, मैं ये क्या कह रहा हूँ, है ना. बिस्मथ के बाद ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका स्टेबल आइसोटोप हो, सभी रेडियो एक्टिव है. ठीक है. After bismuth means after 83, right? समझ में आ रही बात है? Yes, sir. Okay. Now let's say we will talk about exceptions in electronic configuration. And keep writing, okay? आप लोग जब तक सुन रहे हो ना तब तक सब इजी लगता है. The moment when you try to write and you try to think, then only actually you realize कि वो आपको सच में समझ में आया. So writing is very must, very very important. देखने में सब समझ में आ रहा है, ये दिक्कत होती है. So remember it. Now I'll talk about, we are going to, एक बार synthetic element वापस बताओगे? synthetic means man made. अच्छा, मतलब ओके, मतलब लैब में क्रिएट किया है. हाँ मतलब यूरेनियम के बाद में सारे एलिमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं. हाँ. ओह, ओके. क्योंकि ये इतने ट्रेसेस में है कि आप इनको एक्सट्रैक्ट करके, मान लो हो सकता है ऐसा नहीं है ना कि आपको कहीं पे मिले, लेकिन मोस्टली दीज एलिमेंट्स जो है ना, इनके बारे में कैसे पता चला, हाउ वी आर एबल टू. सो हमने कोई बम्बार्डमेंट कराई, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप ये बात पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे कि अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिव बम्बार्डमेंट होगा, जैसे मान लो बीटा रेज निकल गई इससे, है ना, कुछ हमने बम्बार्ड किया, बीटा रेज निकली, तो एक साइड बीटा रेज क्या होता है, अभी मैं खैर अल्फा बीटा में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वहां पे क्या होगा, बीटा रेज निकली तो एक साइड ये राइट में जाएगा, अल्फा निकला तो दो साइड लेफ्ट में जाएगा. राइट, हाँ. So that's how you can go, you can think about it. Now let's try to understand the let's say कौन सा कलर ले, कलर let's say take black. So I'm going to write exceptions and I'm going to circle it. So this is going to be exception, this is an exception, copper is exception, so Ag is also exception, and Au is also exception, and molybdenum is exception, but tungsten is not. Okay, so molybdenum is exception, tungsten is not, but some other exception also there. That niobium is considered an exception, ruthenium is considered an exception, and rhodium is considered an exception. Similarly, palladium is considered an exception. I'm putting a different sign over here. I'm putting a, let's say, square sign over here, right? Not rather than circle. So circle represents different type of exception, and palladium represents different type of exception. So this is platinum is exception, and you can think cerium. Cerium is different type of exception. So I'm just putting a different colored sign. So let's say this is exception, and gadolinium is exception. So these are, let's say, exception. Okay. So let's see. And 5F में बहुत सारे exception है, so I'm not bothered about 5F. 5F इतना important नहीं है. Almost all the elements are having some exception. तो थोरियम का exception हम याद रख सकते हैं. चलो, थोरियम का exception ये है. Let's say I'm putting another sign.
So lot of exceptions are there, right? But the famous one is chromium and copper, so and their family. So we are going to understand. So let's say I will write electronic configuration of all these elements, and then I will put the similarity so that you can understand what is the similarity. So let's say we are talking about chromium, then chromium is 24 and its electronic configuration is argon, that is 18. Then we are having 4s1 3d5. Now molybdenum, if you are going to talk about, so 14 and इसमें आप जोड़ दोगे 18, so this is going to be 42. Molybdenum is same family, then this is going to krypton, that is going to 36, and that 5s1 4d5. So this is exception you can see. But when we talk about tungsten, tungsten is 32 42 में 32 add कर दो, so this is going to be 74. The tungsten electronic configuration is xenon 54. So this is, I'm just writing because this, okay, these two are exception, but this is not. So 4s 54, so this is going to be 6s2 and 4f14 and then 5d4. So electronic configuration, these are the exception. I'm just putting the star mark here so that you can identify. ठीक है? और सर I'm putting, आपने टंगस्टन लिखा क्यों है अगर वो एक्सेप्शन नहीं है तो? इसकी फैमिली का एलिमेंट है बट इसमें एक्सेप्शन नहीं है, राइट? अच्छा, सो ओके दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, है ना? सर। तो एक्सेप्शन आते कभी है, मतलब जब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते तभी? एक्चुअली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो काफी सारे एक्सेप्शन है, बाकी सब में तो नहीं है, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में. सो अच्छा तो सर 77 74 एलिमेंट कौन सा है? टंगस्टन. कौन सा? टंगस्टन, टंगस्टन वो जो बल्ब में लगता है ना, हमने पढ़ा होगा. अच्छा सर, टंगस्टन वायर. ठीक है सर. सर उसका केमिकल सिंबल क्या है सर? डब्ल्यू. KL. अबे W, अच्छा W है वो, ओके. सर वो टंगस्टन में ऐसा क्यों नहीं होता फिर? एक्चुअली इसका मैं मतलब एग्जैक्ट रीजन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दैट इज हैपनिंग, है ना? अगर हम D5 लिख रहे हैं और D4 लिख रहे हैं तो वो एनर्जी के हिसाब से आपको पता चल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी, प्रॉपर्टीज वी हैव चेक्ड, है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आए हैं? व्हेन वी हैव आइडेंटिफाइड द एलिमेंट, मान लो कहीं से हमने कोई एक्सट्रैक्ट कर लिया ये एलिमेंट, ठीक है? कहीं नेचर से आपने ये एक्सट्रैक्ट किया एलिमेंट, फिर उसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ना चालू की. Now then you have started to identify electron negativity, ionization energy, different type of compound. Then you are able to identify अच्छा ये शायद D5 ना होगा D4 है, right? Then you have thought about कि यार जहाँ exception आ रहे हैं वहाँ exception क्यों आ रहे हैं? So there are certain logics are there, but not exact logic, है ना? जैसे क्रोमियम में जो logic लग रहा है ना? मोलिब्डेनम में लग रहा है, वो यहाँ नहीं लग रहा है, right? तभी तो यहाँ D4 लिखा है, वरना D5 ही लिख रहे होते. So these are the things you have to remember. Exact logic नहीं है, आपको exceptions याद रखने पड़ेंगे. ठीक है? सब हर एलिमेंट अलग अलग है, तो उसकी जो रीजंस होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं. I will tell you जब मैं एक्सेप्शन बताऊंगा. तो ये तो हो गया हमारा 6 ग्रुप, है ना? This is going to be 6 ग्रुप. अच्छा, ग्रुप की कैलकुलेशन कैसे होती है? ग्रुप की कैलकुलेशन कैसे होती है ना? मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ. दैट इज बेस्ड ऑन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, उसमें sp और d के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो आफ्टर इनर्ट गैस. तो ये इनको जोड़ेंगे तो ये 1 + 5 6 1 + 5 6 एंड 2 + 4 6. 4f का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि 4f तो थर्ड ग्रुप में है ना? सो दैट इज नॉट एक्चुअली फिलिंग द पीरियोडिक टेबल में, ये तो स्पेस ऑक्यूपाई कर नहीं रहा है. S एंड D आर ऑक्यूपाइंग. पहले 2 भर गए S के, फिर 4 भर गए D के, राइट? तो तुम समझ सकते हो 2 + 4 हमने कर दिया तो 6 आ गया. समझ में आया? ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी number of electrons in ns plus np plus n-1d group number gives group number.
अगर कोई अननोन आपको मान लो, ये बात मैं दोबारा भी लिखा दूंगा, बट दिस इज आई जस्ट हैव रिटन, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अगेन सेइंग कि ये ग्रुप नंबर देता है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ आई विल टॉक अबाउट लेट्स से 11th ग्रुप। So 11th group we are having copper, that is 29, then we are having Ag, that is 47, and then we are having Au, that is 79. The electronic configurations are, so for copper we are having argon 18, and फिर हम क्या बोलेंगे 3d10 4s1, so 4s1 3d10, you can see 1 plus 10 11. Then here it is going to be krypton, that is going to be 36, and here 5s1 4d10, and this is going to be xenon 54. We are going to have this over here 6s1 4f14 and 5d10. Okay, so these are the electronic configuration. Now the one common thing you can understand is ये जो भी है इनमें जो s ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है, राइट। सो ये जो एक्सेप्शन हम लिख रहे हैं इन सब में, राइट, एक ही इलेक्ट्रॉन है s में। नाउ विल राइट सम अदर एक्सेप्शन, आई विल राइट हियर ओनली सम अदर एक्सेप्शंस। So we are having, let's say niobium है ना, molybdenum से पहले आया था, so that is 41. In 41 the electronic configuration krypton, and this is 36, and here this is 5s1, ठीक है, and that is 4d4, 36 37 plus 4. So here we are not having, let's say, complete half filled d orbital, but this is the exception, यहाँ पे 5s1 आ रहा है। Similarly we are having, let's say, ruthenium, that is 44, right, that is going to be 36 kr 5s1, so 37, and then this is going to be 47, and rhodium, that is 45, so 36 kr 5s1 4d8. So you can see all these are having, all these circle which I have made right here, all these circles presents, है ना, ये अभी platinum भी लिखना है, this circle presents कि ns1 है ना, circle का क्या represent कर रहा है electronic configuration में ns1. I will write here, circle means circle is representing ns1 type electronic configuration. ठीक है। Now we'll write palladium also, है ना, platinum is going to be 78, and this is going to be 36 kr of xenon, 54 xenon, and this is going to be 6s1 55, then 4f14 55 plus 40 60, कितना हुआ है ना, 69, and then we are having 4d9. So the electronic configuration here is 4d9. So these are, है ना, all these exceptions, है ना, in all these exception, है ना, ns orbital is having one electron. Now इसके अलावा क्या है ना, so we are having, let's say, some other examples. Wait a second.
Okay, so in all these exceptions, ns orbital is having 1 electron. Now we'll talk about some other exceptions. So let's say we are talking about palladium, that is going to be 46. So palladium is particularly important, and 36, so this is going to be 36. And then we are having 5s0 and 4d10. So this is, you can see the platinum and palladium both belongs to same family, but over here what is happening, this is 5s0 4d10 है ना. ये इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, let's say again I am going to write, so this is 10th group. 10th group के तुम एलिमेंट देखोगे तो palladium is exception, platinum I have already written, that is I'm again writing, right? Yeah. So this is going to be 10th group mein, this is 78. So 78 is krypton, xenon, and that is 54. And this is 6s1, 4d, 5d9. This is 5d9 actually. 5d9. So this is going to be 4f I have not written. So that is 4f14 5d9. And when you will talk about nickel, nickel is not exception. Nickel is 28, and that is, let's say, argon. So this is going to be 4s2 3d8. So this is not an exception. Sir, argon 18. हाँ यार मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ. Okay. Not an exception. ठीक है. So you can see the over here the things are different, and that's why we have kept a different sign over here. Different sign is, let's say this is going to be kind of a square, right? ठीक है. अब बात करते हैं cerium and gadolinium की. So in 4f series, see what happens is, if you are going to see the electronic configuration over here, then 54 के बाद क्या भरेगा 6s of Waugh rule में, है ना. 54 के बाद क्या भरेगा 6s, 56. उसके बाद भरना चाहिए क्या 4f भरना चाहिए था, लेकिन lanthanum पहले भरता है. lanthanum को अभी एग्जांपल लिख लेते हैं. 57 is d block element. तो अगर आप Waugh rule के हिसाब से चलोगे तो 4f भरना चाहिए था, बट भरा क्या d, पहले भरा d. So this is 54, you know, this is going to be, and this is 6s2, and this is going to be 5d1. ना क्या चाहिए था 6s के बाद 4f, है ना. मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना. हाँ सर, हाँ सर. बट सर भरा क्या? Yes, ma'am. सर ये जो एक्सेप्शंस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मतलब एक्साइटेड स्टेट्स में ही होते हैं ना? नहीं, इनके जो एक्सेप्शंस हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने अवॉ रूल में सोचे थे वैसे नहीं है बस, है ना. अवॉ रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 4s2 भर के फिर 3d भरना, मतलब ये पूरा भरना चाहिए था s2, राइट. है ना. पर सर मतलब अभी वो इलेक्ट्रॉन है, वो जो टेक्निकली वो 4f में चाहिए था पर वो 5d में चला गया है, तो वो एक एक्साइटेड स्टेट पे ही क्या है, राइट? नहीं, वो एक तुम ऐसे सोच रहे हो. नहीं, वो ये इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, अच्छा, उसका अनस्टेबल. ओके ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये, है ना. ओके ओके, एक्साइटेड समझा स्टेट के सर. हिसाब से समझोगे तो आपको लगेगा वो एक्साइटेड में है नहीं ज्यादा. समझा सर, मतलब उसकी ये स्टेबल स्टेट है, समझा. ओके, सो दिस इज lanthanum. lanthanum 5d का एलिमेंट है, बट इट शुड हैव बीन. लैंथनम वाला रिपीट करेंगे प्लीज. क्या सर ये लैंथनम वाला रिपीट करेंगे प्लीज. हाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो, अगर हम वो अवॉ रूल से चलें तो 54 के बाद 6s के बाद 4f भरना चाहिए, लेकिन भर क्या रहा है 5d. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस इज lanthanum इज 5 एलिमेंट ऑफ 5d सीरीज, है ना. वी विल राइट. है ना. the element which is going to tell us कि कौन से
कौन सी ऐसे पोजीशन है, तो हम बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन you can write if, let's say if last electron is filled in s block s orbital है ना, ये ऐसे ही नोट है एक तरह से. So if last electron is filled in s orbital, then it is going to be s block element. अगर if last electron is filled in p orbital, then p block element. If last electron is filled in d orbital, then d block element. So this is, यहाँ पे last electron कहाँ पे आया, 56 के भरने के बाद d में, so that's why d block element. And if last electron is filled in f orbital, then this is going to be f block element. अब f block element को थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि f block element क्या, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जो लास्ट में लिखा होता है सेल, वही आपका, ये जो लास्ट में आपने लिखा है ऐसे है ना, वही आपका क्या होगा, राइट, कहीं पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट, है ना. जैसे कहीं पे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ आसानी से आइडेंटिफाई होता है. बट 4f में क्या होता है, 4f पहले लिखा जाता है 5d से, ये कंफ्यूजन कई बच्चों को रहता है. आपको यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा कहाँ पे, फिल कहाँ हुआ है, ठीक है. सो लिटिल बिट केयरफुल, देन यू कैन रिमेम्बर. एकदम ऐसा नहीं है लास्ट वाला देखा और फिर एकदम से बोल दिया अच्छा ये लास्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा. लिखते टाइम पे वी विल राइटिंग लाइक, है ना, कि 4f को पहले लिखते हैं फिर 5d लिखते हैं. तो लेट्स से राइटिंग 58 सेरियम, तो सेरियम जो कि एक्सेप्शन है, लेंथेनम भी एक तरह से एक्सेप्शन ही है, ठीक है. So that is going to be 54 xenon and 6s2 4f1 5d1. So one electron is in cerium, so that is 4f over here, ठीक है. So cerium, lanthanum with respect to each other I have said kind of exception, कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4f2 होना चाहिए था, 5d0 होना चाहिए था, so you can see यहाँ पे 5d1 है, right. And then we are going to say about gadolinium, that is going to be 64, and that is right, so 54 xenon 6s2 4f7 5d1 again, है ना, 54 plus 2 56 plus 7 63 and plus 1, that is going to be 64. Now all these elements which I have written are having last electron, or not last, one electron in 5d. So this symbol which I have kept, right, I'm just going up, this symbol which I have kept right over here, angle, that is going to tell us, right, n-1d1 type of configuration. So this is going to be, यहाँ पे मैं इसको lanthanum को भी इसमें काउंट कर ले रहा हूँ. सर n-1 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जैसे हमने 6s लिखा था ना, हाँ, तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, सॉरी सबसे लास्ट वाला जो n वैल्यू है वो क्या है, 6 है. तो 5 में आया. ओ 5d1 वैसे, ओके. Okay, now, and we have already seen this is going to be square is going to be, है ना, that is going to be ns0 n-1 d10. Okay, now स्क्वायर का कौन सा टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? पैलेडियम बताया था ना, d0 कॉन्फ़िगरेशन, d10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा ns0. स्क्वायर का.
And last, which I have written, let's say over here. So about thorium, that is why I have written thorium like this, क्योंकि thorium में है ना, पहले मैं ये इतना लिख लूँ, है ना, एक और बात है ना. So एक example, thorium पे थोड़ी देर में आते हैं. This is the example of lutetium, that is 71. Now why I am writing lutetium like this? क्योंकि इसमें confusion जल्दी होता है. So if I am going to write 54 xenon, and the electronic configuration here, it is going to be 54 के बाद आपने क्या किया, 6s2 भरा, है ना, 6s2, फिर उसके बाद आपने 56 हो गया, फिर आपने 4f14 भरा, तो आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, 70. तो 5d1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, जो कि नॉर्मल आना ही चाहिए. बट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो लुटेटियम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, 4f में, ना कि 5d में. ठीक है, समझ में आई बात? फिर से सुनो, लुटेटियम इज गोइंग टू बी, है ना, लुटेटियम या तो याद रख लो 58 से 71 4f वाले, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी लिखे थे उनके, सो दैट यू कैन रिमेम्बर, है ना, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, डी ब्लॉक, है ना. यहाँ 57 के बाद 72 लिखा है, एंड देन आई हैव रिटन 4f 58 to 71 92 03. रिमेम्बर इट. यहाँ पे जब आप लुटेटियम लिख रहे हो, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, but the last electron, this is not an exception. But last electron goes to 4f, hence it is f block element. अब ये जब भी लिखते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो इसमें बच्चे हमेशा 5d लिख के आते हैं, हमेशा. अगर उन्होंने इस बात पे थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं हुए तो वो हमेशा 5d लिख के आएंगे और गलत हो जाएगा. तो इसलिए फिर मैंने ये लुटेटियम समझा दिया. अब मैं थोड़े और एग्जांपल यहाँ बताता हूँ. जैसे if I am going to write praseodymium, that is 59 pr, if इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, then this is going to be xenon, है ना, ये एक्सेप्शन नहीं है, but how this is going to be electronic configuration, so learn it. 54, then 6s2. ठीक है, 6s2 के बाद क्या आएगा, 56. अब कितना बचा यहाँ पे, 3. 54 plus 2 is 56, तो 4f3. So you can see 58 के बाद 59 गए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4f1 5d1 था, यहाँ पे क्या है 4f3 5d0. So in all 4f series apart from these elements जिनके बताए, वहां पे क्या होगा, 5 में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. So this is normal, है ना, this is not also not an exception. तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस क्या है, राइट? Yes, no? सर वो लुथेनियम का एग्जांपल जो आपने बताया था, हाँ, सर लुटेटियम, मतलब, हाँ लुटेटियम, राइट, दिस वन ना? हाँ सर. हाँ, तो सर मतलब उसका रीजन फिर सर उसका भी सर मतलब परफेक्ट क्लियर रीजन नहीं रहेगा ना, 4f14 में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? वो 4f14 में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, 14 एलिमेंट है ना. 5d1 वाला तो आपका ऑलरेडी लेंथेनम आ चुका है ना. ये 5d1 होता है तो क्या होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है 5d सीरीज का, राइट? हाँ या ना? हाँ ना, हाँ या ना? हाँ सर. है ना, बट ऐसा पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 5d सीरीज तो ऑलरेडी आ चुका है ना, लेंथेनम. द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू बी गोज इनटू 4f में जा रहा है, ये 4f एलिमेंट का, 4f ब्लॉक का एलिमेंट है ये. ओके सर. So according to above, 4f स्टार्ट होना चाहिए था 57 से, खत्म होना चाहिए था 70 पे, एंड देन 71 से लेके 80 तक आपका d होना चाहिए था. बट यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है ना. 57 लेंथेनम की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स के साथ थी, तो इसलिए उसको अलग रखा गया थोड़ा सा. एक्चुअली लेंथेनम की दोनों से मैच करती है, ऐसा नहीं है, 4f ब्लॉक से भी उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, बट उसकी डी ब्लॉक एलिमेंट से भी मैच करती है. दैट्स व्हाई केप्ट इट लाइक दिस. तो ये कुछ वेरिएशन है, वो याद रखने हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. अब मैं बात कर रहा हूँ थोरियम की. सो थोरियम इज 90, and thorium electronic configuration, this is going to be radon, and this is 86,
and then 7s2 and this is going to be, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, है ना, अगर हम थोरियम की बात करें तो जैसे वैसे ही एक्टिनियम हो गया, एक्टिनियम में क्या हुआ 5d1 की जगह 6d1 आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये f ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज का एलिमेंट है, बट यहाँ पे f में ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5f0 6d2, so no electron in f. Though thorium is kept in 5f series, but there is no electron in 5f subcell. So it's just like कि हीलियम को, ये क्या है हो गया एक तरह से, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, है ना, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, s block right, last electron s orbital में, but it is kept in p block. समझ में आया, ये बात समझ में आई, yes no? Yes sir. हाँ, तो ये सब एक्सेप्शंस थोड़े थोड़े मैंने बता दिए हैं सब एक साथ, है ना, तो उनको थोड़ा याद रखना। सर जो भी आपने मतलब हाईलाइट किए सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर वगैरह से, जस्ट वो ही है ना एक्सेप्शंस, उनको छोड़ के कोई नहीं है ना? उनके अलावा 5f में भी काफी सारे एक्सेप्शन है, बट 5f हमें याद नहीं रखना। 5f में ये थोरियम थोड़ा पर्टिकुलर था, इसमें क्वेश्चन कभी आता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो, है ना, जिसमें जो that is going to belongs to, या फिर ऐसा कुछ आएगा कि 5f सीरीज में बिलोंग करता है बट इलेक्ट्रॉन नहीं है, that is going to be thorium. Now let's understand the reason. तो इतने जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखे, इनमें कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से समझ सकते हो कि ये एक्सेप्शन क्यों बने, क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड हो गया, यहाँ पे ये हुआ राइट, यहाँ पे ये क्या हुआ फुल फिल्ड हो गया, इसलिए फिर क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, यहाँ पे क्या हुआ ये हाफ फिल्ड हो गया। सो सम रीजन इज गिवन एज लाइक दिस, एक्सेप्शन, रीजन फॉर एक्सेप्शंस, है ना, क्या रीजन दिए गए? That is called stability of half filled and fully filled, half filled and fully filled subcell or orbitals you can say, ठीक है। So stability of half filled and fully filled subcells are more or you can say half filled and fully filled are more stable, है ना। अब इसका रीजन क्या है, why these are more stable? So for that the reason that is given as exchange energy. तो इसका रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी है, ठीक है। क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी? सो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू, लेट्स से वी विल टेक एग्जांपल, एक्सचेंज एनर्जी है एनर्जी रिलीज्ड when electrons of parallel spin, or you can say same spin, है ना, exchange their orbitals. When electrons of parallel spin exchange their orbitals, degenerated electrons बोल सकते हैं, degenerated electrons of parallel spin exchange their positions or orbitals. So what happens is, इसका रीजन क्या है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट
So I am going to talk about D4 configuration. So how many? 1, 2, 3, 4. 4 electrons are there. Now all these electrons can exchange their orbitals with each other. These are degenerated electrons. Means इनकी सबकी एनर्जी बराबर है. तो they can do is they can exchange their position. So this first one can exchange its position with 3 other electrons. The second one has already we have counted, so 2 new exchange can happen like this. And this one can exchange another one like this. So this is going to be total exchange are going to be 3 plus 2 plus 1, so that is 6. And every exchange some energy will release. और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो फिर क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है. एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. कोई मुझे समझाएगा ये बात कि नहीं? किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे बताएगा. आर्यन, यस सर. समझ में आया ये? एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. हाँ सर. ठीक है, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे इफ यू आर अ वेरी टायर्ड. एक मिनट, एक डाउट है. तो मतलब एनर्जी रिलीज होती है और एटम ओवरऑल एटम ज्यादा स्टेबल बनता है, राइट? फिर मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे जाता है, मतलब क्या होता है वो आप एक बार वापस बताओगे? मैंने ये बोला कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया है ना, हाफ फील्ड वाला, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन क्यों आए. तो उसका रीजन ये दिया गया कि ये हो सकता था, बट अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा लेट्स से, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा लेट्स से, सो दिस इज व्हाट विल हैपन. यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. नाउ ऑल ऑफ दीज कैन दे एक्सचेंज. तो यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गए. कितने बढ़ गए? तो ये 4 हो गया पहला वाला. दूसरा वाला 3 टाइम्स एक्सचेंज हो सकता है आपस में एक दूसरे के साथ. तीसरा वाला ये जो है ये 2 से एक्सचेंज हो सकता है. एंड लास्ट वाला 1 से एक्सचेंज हो सकता है. तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए यहाँ पे? 3 plus 2 plus 1 6, right? 4 plus 3 plus 2 plus 1, right? फर्स्ट वाला 4 से, हाँ, right, sorry. so this is 3 going to be 2 10. 1, right? 10. तो हमने बोला यहाँ से के कंपैरिजन में यहाँ पे 10 एक्सचेंज हो रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज 10 एक्सचेंज द एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उससे और ज्यादा रिलीज हो गई. तो क्या हुआ? स्टेबल हो गया कॉन्फ़िगरेशन. सो दैट्स व्हाई वी सेड कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. ओके. सो D5 है. D5 में टोटल एक्सचेंज है 10. D9 में कितने एक्सचेंज है? लेट्स से D9 भी लिख लेते हैं. तो D9 में एक्चुअली पैरेलल स्पिन मैंने बोला हुआ है, राइट? ऐसा नहीं है कि ये, तो यहाँ पे क्या है? 5 पैरेलल स्पिन है और 4 दूसरी तरह के पैरेलल स्पिन है, राइट? D9 में क्या है? 5 वन टाइप के पैरेलल स्पिन है, 4 अदर टाइप के पैरेलल स्पिन है. सो दैट्स व्हाई टोटल एक्सचेंज आर गोइंग टू बी 6 plus 10, that is going to be 16. 6 किसके हिसाब से? 4 के हिसाब से. एंड 10 किसके हिसाब से? 5 के हिसाब से. तो 5 ये जो पैरेलल स्पिन है those are going to have 10 exchange. एंड ये जो 4 पैरेलल स्पिन है ये कितने करेंगे? ये एक्सचेंज होंगे 6 स्पिन, so 6 exchange. So that's why total exchange 16. If I am going to take D10, why D10 is preferred? So for the same reason, the number of exchange has increased. So total exchange are going to be here. बताओ ऋषा कितने होंगे? सर 10 होंगे. 10 plus 10 20. अच्छा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है. हाँ, 2 अलग अलग इस तरह के है ना. सो इनके 10 और इनके 10. पर एक्सचेंज होके वो जाएंगे कहाँ पर? मतलब एक कहीं नहीं दूसरे जाएंगे, से अपने ऑर्बिटल चेंज कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. अच्छा, ओके. अच्छा, समझा सर. पर ये फिर छोटे मतलब छोटे एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स में नहीं होता ये? क्या कह रहे हो फिर से? मतलब ये छोटे, मतलब सपोज ऐसे लिथियम वगैरह कोई है, मतलब तो जो उनमें भी होता है, बट वो रीजन नहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. जैसे मान लो कहीं D2 कॉन्फ़िगरेशन है या फिर P2 कॉन्फ़िगरेशन है. हाँ. तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, पोजीशन करते रहते हैं. ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा होता रहता है. अच्छा. बट जब भी होता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है. हाँ. लेकिन ऐसा होने के कारण कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है ना.
हाँ क्योंकि राइट, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, एनर्जी रिलीज नहीं हुई तभी। हाँ, इसको इससे भी समझ सकते हो, हुंड्स रूल से, है ना। हुंड्स रूल को ये एक्सप्लेन कर देगा, है ना। तो देखो जब ये दोनों थे तो यहाँ पे एक्सचेंज रिलीज हुआ, एक्सचेंज हुआ तो ये स्टेबल हो गए। यहाँ पे तो ये एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, राइट। So exchange energy is playing an important role in Hund's rule also. अगर ये दोनों ऐसे पेयर कर दिया आपने पहले तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से फिल करेंगे हम दो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है सर। तो ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन, के रीजन, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको छोटे छोटे कुछ पॉइंट और बताए हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, how to identify let's say which block element is there, तो मैं अभी लिखा दूंगा अभी estimation of element। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आ गया? मुझे आ गया सर। तो आप जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 बार 15 बार अलग अलग एलिमेंट्स के नहीं लिखोगे तब तक फिर कंफ्यूजन रहेगा। तो रैंडमली किसी का भी लिख लो। मैंने बोल दिया लेट्स से 66, है ना, मैंने बोला 66 एलिमेंट, तो मैं नहीं पता है 66 कौन सा है, आई डोंट केयर, ट्राई टू राइट इट, 66 हुआ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अभी आपको जब एक्सेप्शन बताए तो मैंने एटॉमिक नंबर भी बताए, तो यू कैन रिमेंबर दोस एटॉमिक नंबर आल्सो, कौन कौन से होंगे। तो जैसे मैंने अगर 64 बोला होता तो एक्सेप्शन होता, 66 एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू था आपके लिए, इसमें आप ये इसमें आपको पूरा पता भी नहीं होगा, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, ढंग से अच्छी तरह से। इस अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से देख लेना। नाउ क्लासिफिकेशन में कुछ और बातें जैसे मैं बोल सकता हूँ, तो मैं इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बस बोल दे रहा हूँ, राइट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल भी बोलते हैं इनको, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, राइट। कुछ बातें ऐसा ही है ना। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को बोलते हैं, ओरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। If you want you can write, है ना, S block element लिख लो, S block फिर लिख लो इसमें। These are all called as soft metals, ठीक है, क्योंकि ये these are easily these can be cut easily with knife, so that's why these are soft elements। और oxides of S block elements are basic in nature, ठीक है। S block elements are like, let's say first group is called alkali metal, first group is called alkali metals, and second group is called alkaline earth metal, second group is called alkaline earth metal। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं लिख देता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट में देखो क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आइदर इट इज गोइंग टू बी NS1 और इट इज गोइंग टू बी NS2, सो 1 to 2, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप is called alkali metal। Why this name comes? Because oxide and hydroxide are basic in nature, oxide and hydroxides are basic in nature, ठीक है। second group is called alkaline earth metal। so alkaline earth term we are using because their compounds are present in compounds of these groups, this group or these sorry, compound of this group
present in earth crust, and hydroxide oxides are basic in nature. ठीक है, and we can say, let's say cesium is liquid at 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये बात भी हम बोल सकते हैं इसमें. ये कुछ बातें हैं ऐसे, इनको हम बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया. इसके अलावा मैंने बोला था ऑक्साइड, ये बेसिक इन नेचर हो गए. ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? That is NH2 NB126. ठीक है, NH2 NB126. एंड इसमें क्या क्या है? नॉन मेटल भी हैं, मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं. ठीक है, इसमें 18th ग्रुप और जीरो ग्रुप, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, those are called 18th group or zero group is called, है ना, inert gas. Or you can say the not called kind of, let's say zero group elements are, zero group elements are inert gas, inert gases. ठीक है, so these are we will see novel configuration, आगे बात करेंगे इन सब की. ठीक है, और क्या बता सकते हैं पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में गैसेस हैं, है ना. तो in complete periodic table, total 11 gases are present. 11 elements. 11 elements are present as gases. ठीक है, so that's why at room temperature, at standard temperature, so room temperature, whatever you can say. Those examples are H2, then we are having F2, नहीं चलते हैं, H2, N2, O2, F2, Cl2, 1 2 3 4 5, है ना. फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. These are the names. तो इसमें ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पी ब्लॉक के नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम पी ब्लॉक. ठीक है, नाउ लेट्स से in complete periodic table, only Br2, that is non-metal, and
Hg, that is metal, are liquid. ठीक है. So Br2 and Hg जो है बस वही लिक्विड है, बाकी कोई लिक्विड नहीं. बाकी लिक्विड किस पे है? थोड़े हायर टेम्परेचर पे, जैसे सीजियम के बारे में मैंने लिखा है. सीजियम का एक्चुअली में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जा रहा है. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट. So D block element electronic configuration is given as NS1 to 2. So it is not NS2 always. Sometimes it could be NS1. So that's why NS1 to 2 or N minus 1 D1 to 10. It's going to be electronic configuration. क्या है? D block elements are called transition elements, are also called ठीक है, as this block is present between S block metals and P block non-metals. So that's why there is a transition from metals to non-metals, and this transition is happening in P block element. So that's why those are called transition element, and this block is present between S block and metals and P block non-metals. ठीक है. So transition metals are having at least one unpaired electron. ठीक है. Hence 12th group, that is zinc, cadmium, mercury, is not considered as a part of transition element. ठीक है. तो डी ब्लॉक का पार्ट है 12th ग्रुप, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये नहीं काउंट किए जाते हैं जिंक, कैडमियम, Hg, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar 4s2 3d10. So there is no unpaired electron. Now in all other elements क्या होगा? या तो आपके पास 4s1 होगा या फिर D में कुछ होगा, 9 10 है ना, 9 होगा है ना. तो हाँ बोलो. तो मतलब ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब डी ब्लॉक में आते हैं, पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है. करेक्ट. ओह ठीक है. ओके. ओके. नाउ लेट्स से और क्या है. ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स are colored, paramagnetic in nature due to presence of unpaired electron. So जो डी ब्लॉक में कलर आता है डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है. मोस्टली, नॉट ऑलवेज, बट मोस्टली वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है. दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है. ये हो गया हमारा. ठीक है. तो और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने बता ही दिया आपको. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज inner transition elements. I have told you that bismuth के बाद वाले रेडियोएक्टिव हैं. और 5f सीरीज तो पूरी रेडियोएक्टिव है ना. So inner transition elements
electronic configuration. So you can say NH2 N-1 D 0, है ना? So this is going to be 0 to 1, and F, sorry, N-2 F 0 to 40. Sorry, 1 to 40. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। लेट्स से इसमें और क्या बातें हम लिख सकते हैं, तो 5F सीरीज, दैट इज एक्टिनाइड सीरीज, इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, दैट्स व्हाई जनरली क्या होता है कि हाफ लाइफ एक टर्म आता है ना, जिसमें मान लो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, पहले थोड़ा यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं। मान लो कहीं पे 10 एटम थे, 10 एटम कुछ टाइम के बाद, सम टाइम के बाद, मान लो लेट्स से 10 मिनट के बाद, है ना, 10 एटम रह जाएंगे, 5 एटम रह जाएंगे, 5 हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। तो रहेंगे 10 एटम ही, बट अगर मान लो ये यूरेनियम के थे, मान लो, तो 5 यूरेनियम के रहेंगे और 5 किसी और के हो जाएंगे। ये है हाफ लाइफ, समथिंग एल्स। सर सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ हम लोग चेंज कर सकते हैं ना? नहीं सर, एक्चुअली मैंने एक वो चेर्नोबिल का सर न्यूक्लियर रिएक्टर का सर वो एक्सप्लोजन हुआ था ना, उसमें हाफ लाइफ थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वो उसकी रिएक्टिविटी चेंज कर रहे हैं। अच्छा हाँ, नहीं उसका सर एक्चुअली हाफ लाइफ 100 इयर्स हो गया था, इसीलिए। नहीं बेटा, उसका हाफ लाइफ 100 ईयर नहीं हुआ था, उसमें भी यूरेनियम यूज हुआ था। यूरेनियम का हाफ लाइफ 4500 ईयर के आसपास होता है, ठीक है। एक्चुअली जहां पे भी यूरेनियम की माइंस हैं या फिर जहां पे भी ये रिएक्टर है, और वहां पे अगर कभी एक्सपोज हो जाता है तो आपके एटमॉस्फेयर में यूरेनियम रहता है, ठीक है। अब मान लो मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले लूं, लेट्स से if I am going to take let's say 10 to the power 20 atoms, let's say, है ना, ये एक मोल, ये भी अभी एक मोल नहीं हुआ, राइट। मान लो ये 10 to the power 20 एटम्स है, सो ये 4500 ईयर में 10 to the power 10 एटम्स में भी रह जाएंगे, बाकी ये किसी और में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये 10 to the power 10 एकदम से खत्म हो रहे होंगे, राइट। हर सेकंड अब आप कैलकुलेट कर लो, ये 10 to the power 10 खत्म होंगे 4500 साल में, तो 100 सालों में आप निकाल सकते हो कितने मतलब खत्म हो रहे होंगे, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, राइट, रिलेटिवली। तो ये है, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया इससे मिल जाएगा। तो उसमें था थ्रेशोल्ड लिमिट, उसमें क्या था, थ्रेशोल्ड लिमिट था कि भाई 100 साल के बाद वो थ्रेशोल्ड लिमिट ऐसी आएगी कि वहां पे आप सरवाइव कर सकते हो। समझ में आया? ओके हाँ, ओके सर। मतलब आपकी बॉडी, ये क्या है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये पावर। हाँ बोलो आगे। सर वो 10 to the power 20 एटम्स ऑफ यूरेनियम का सर हाफ लाइफ 4500 इयर्स कैसे हुआ? सबका होता है यूरेनियम का, चाहे वो एक एटम हो, चाहे 100 एटम हो, 1000 एटम हो, जो भी है ना, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स। वो बेसिकली सर रैंडम ही होता है ना, मतलब कौन सा एटम कभी, हाँ, वो रैंडम होता है, राइट। ठीक है, ओके सर। तो हर सेकंड कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब खत्म होने का मतलब ये है। बट अगर हम बोलेंगे ओवरऑल, तो हम बोलेंगे कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है, कि ये भाई इतने टाइम में अपना आधा हो जाएगा। तो उसमें परमिसिबल लिमिट थी कि जैसे अगर आप अभी भी अपने घर में बैठ के रेडियो एक्टिविटी नापोगे तो रेडियो एक्टिविटी आएगी थोड़ी बहुत, है ना, बट वो इतनी नहीं है कि दैट इज गोइंग टू बी कॉजिंग अ थ्रेट टू योर लाइफ, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा रेडियो एक्टिविटी के जो वो है क्या बोलना चाहिए,
वैल्यूज हैं वो आपको मिलेंगे रेडियो एक्टिव, है ना। चलो एनीवे, रेडियो एक्टिविटी रदरफोर्ड वर्क और क्या कहते हैं क्यूरी और इसमें नापते हैं, ठीक है। एक और होता है बैक्टेरियल होता है कुछ, एक और होता है उसमें नापते हैं, तो उससे पता चलता है कितना रेडियो एक्टिविटी है अभी। एनीवे चलो ये तो हो गए क्लासिफिकेशन। इसमें एक और जैसे एक दो चीजें और लिख सकते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। So S and P block elements except inert gas. तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, NS1 to 2 है ना, NP1 to 5, 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया क्लासिफिकेशन। नाउ मैंने नेमिंग आपको बोला था पढ़ने के लिए ना, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। हाँ सर, वो 101 के ऊपर ना। हाँ, हाँ so naming पढ़ा of सर। elements having atomic number more than 100। तो बताओ, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ 108 क्या होगा इसका नाम। मैं बताऊं? हाँ, उन नील ऑक्टीनियम, ऑक्टियम, ठीक है, ऑक्टियम सॉरी। ठीक है। इसको शॉर्ट में बोल देंगे UNO, ठीक है, अन नील, सो UNO ऑक्टियम, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ, लेट्स से 104। हाँ बताओ भाई, बताओ आर्यन। उन्निल क्वाडियम। यस, सो ये हो जाएगा UNQ, ठीक है। लाइक दिस यू कैन विजुलाइज। तो ये तो मैं इसको मैं स्किप कर रहा हूँ इस पार्ट को। अच्छा, अब है एस्टिमेशन ऑफ ग्रुप, जो मैंने बोला था मैं बता दूंगा बाद में। एस्टिमेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। सो दो चीजें तो मैंने बताई दी हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे मैं कोई एग्जांपल दो आप लोग, कोई एलिमेंट, कोई एटॉमिक नंबर बोलो। So 67. 67 लेट्स से, है ना। तो 67 एलिमेंट जो है वो आप, जैसे आपको नहीं भी पता हो तो चलेगा, है ना, वरना आप ऐसे देख सकते हो, सेरियम सीने पर नदियां प्रेम की समाई, आपको पता है ना 58 to 71 होगा, राइट। So you just don't directly know, right, which of the following element is going to be 67. So you can start, है ना, cerium, sodium, promethium, samarium, ये 64 होता है गैलियम। तो ये होम यहाँ आ गया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी HO एनीवे। 64, 65, 66, 67। Now what is going to be electronic configuration? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे, so this is going to be xenon 54. Now the fifth period is completely finished. We will start 6S2 and this is going to be 56 and 4F11, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 6S, let's say 54, 6S2, 4F11. Now the moment you are able to see कि ये 4F11 है, then you will say this is third group. जैसे ही 4F आपको F पता चल रहा है, F का फिक्स है, एक ही ग्रुप है। The maximum value of n gives period. So that's why this is 6 period, ठीक है। Let's say I will take one more example. I'll take example, let's say 34. Now I don't know what is 34 is, so I will think about, okay, 34 36 के पास है, right?
36 के पास है, then it is going to be let's say 36 आपको मुझे पता है क्रिप्टन, क्रिप्टन से पहले क्या Selenium आएगा? होगा। ब्रोमीन आएगा, है ना? ब्रोमीन से पहले ऑक्सीजन फैमिली आएगा, राइट? सो इफ आई डोंट नो देन आई विल ट्राई टू राइट, है ना, फॉर क्लच ब्रेक लेट्स से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे निकाल सकते हो। सो सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है लेट्स से। So you can take a hint, and if you remember it, then you can build कि ये क्या होगा. So anyway, this is going to be सर selenium. ग्रुप वाइज रिमेम्बर करेंगे पीरियड वाइज? अरे कैसे भी रिमेम्बर कर लो, कुछ भी आपको जैसे याद हो जाए वैसे याद रख लो, है ना? कहीं से भी आपको पता तो चल ही जाएगा ना। हाँ सर। So this is going to be 34 selenium. Now you can say argon, that is going to be 18. Then you will say 4s2, then 3d10, then 4p. So this is 20, 34. ठीक है, तो ये हो गया 4b4. So this is 34. Now if you are going to see closely, है ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो what is the maximum value of n? तो पीरियड कौन सा हो गया? 4 हो गया, है ना? What is going to be group? I have told you कि ग्रुप में क्या करना है, s, p और d के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ देने हैं. So this is going to be 2 plus 10 plus 4, that is going to be 16th group. And if I am going to say block, तो block कौन सा जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में, so that's why p. So that's how you can estimate. वो प्रीवियस केस में 4f11 का थर्ड ग्रुप कैसे हुआ था? मैंने बोला था all f are going to be in third group, है ना? लार्जेस्ट ग्रुप बताया ना, थर्ड है। अरे हाँ, यस सर। ठीक है, चलो फिर आज अपन यही फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे जेड इफेक्टिव, effective nuclear charge. So I will give you a little bit hint of effective nuclear charge. So let's move on to that is Z effective, or you can say effective nuclear charge. Now effective nuclear charge में केवल इतना ही है कि जैसे मान लो अगर ये हम न्यूक्लियस पे सारे प्रोटॉन रखे हुए, let's say I am taking example of सोडियम, ठीक है? सोडियम का मतलब क्या है? 11 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस. नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So electrons are present in different let's say position, right? Now we can think about any electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा होगा? एक न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, चाहे वो 1s का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 2s का हो, 2p का हो या 3s का हो, डजंट मैटर. कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उस पे क्या लग रहा होगा? एक न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लग रहा होगा, राइट, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दूसरा रिपल्शन लग रहा होगा थ्रू, ठीक है, थ्रू ऑल दीज अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, राइट? So that's why there is going to be repulsive force. Obviously attractive force is going to be more than repulsive force, and that's why the electrons are present in atom. अगर ये repulsion ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये तो बाहर ही निकल जाता है, है ना? तो F attractive ज्यादा है. Now F attractive ज्यादा है तो how we are going to say what is going to be F net force? So F net we can say F attractive minus F repulsive. ठीक है? Now this F net is actually representing Z effective. ठीक है, तो आपको पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस के Q1 Q2 बाई R. Q2 बाई R स्क्वायर. सो यू नो दिस. तो यहाँ पे क्या है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एट न्यूक्लियस, क्योंकि Q2 तो फिक्स है, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो ये किस पे प्रेजेंट, ये किसको लेट्स से रिप्रेजेंट करता है? चार्ज एट न्यूक्लियस. तो अब हमने क्या किया? अट्रैक्टिव फोर्स तो आया Z के कारण, नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना, सॉरी टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितना आएगा? Z. रिपल्सिव फोर्स को पूरे को एक बोलते हैं टर्म सिग्मा, है ना? अभी विल काउंट कि ये सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी. तो सारे जितना भी इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे उसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ आई एम इफेक्टिवली सेइंग, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 11 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा हो और 4 न्यूटन का फोर्स अपोजिट साइड में लग रहा हो, देन आई विल से कि 7 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रहा है. करेक्ट? ये सुनो, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पे, मान लो हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग 11 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स है ना अवे फ्रॉम न्यूक्लियस लग रहा है. तो हमने क्या बोला? इफेक्टिवली 7 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स द
न्यूक्लियस लग रहा है. Right. Can I say rather than this, I can say कि rather than this 11 proton or everything, I can say कि effectively 7 protons are attracting, let's say 11 protons are attracting, then 11 Newton force है. So can I say that 7 protons are attracting this electrons towards the nucleus effectively? Can I say this? Yes sir. That is called Z effective. तो जितना फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसमें कुछ तो नलीफाई हो गया इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो जितना बचा इफेक्टिवली नेट लेट्स से फोर्स, वो किसके कारण आ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण आ रहा है. पायल ये बात समझ में आ गई? यस सर समझ गया. पायल हो? सर आपने आर्यन बोला ना? मैं पायल बोला. अच्छा. यस सर. समझ में आया? सर थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सोचो ये कि मान लो तुम कहीं खड़े हो, राइट, लेट्स से, एंड आपको मान लो कोई 10 न्यूटन से खींच रहा हो और कोई आपको पुश भी कर रहा हो मान लो 5 न्यूटन से, तो आप इफेक्टिवली क्या बोलोगे? ये 5 न्यूटन से आपको खींचा जा रहा है. मान लो अब इसमें मैं एक प्रोपोर्शनलिटी दे दूं कि ये 10 न्यूटन जो है ना वो 10 लोग खींच रहे हैं आपको, राइट, 10 पीपल, और 5 इधर खींच रहे हैं. मान लो ये एक मैंने प्रोपोर्शनलिटी दे दी, तो मैं इफेक्टिवली क्या बोलूंगा कि अगर ये 5 आपको इधर की तरफ खींच रहे हैं और 10 इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो इफेक्टिवली 5 लोग आपको टुवर्ड्स द न्यूक्लियस खींच रहे हैं, राइट, इफेक्टिवली. यस और नो? यस सर. हाँ, दैट इज व्हाट इज इफेक्टिव चार्ज. न्यूक्लियस पे एक्चुअल चार्ज तो 11 प्रोटॉन का है, बट सारा का सारा 11 प्रोटॉन इसको पूरी तरह से खींच नहीं पा रहा है. इफेक्टिवली कितना खींच रहा है? So we are going to subtract the attractive minus repulsive, that is going to be effective nuclear charge. समझ में आया? ये जिसको नहीं समझ में आ रहा सर है, लेकिन वहाँ पे वो 5 लोग थे और 5 ही न्यूटन था, और वहाँ पे 10 पर्सन थे और 10 न्यूटन था, तो वो देखा जाए तो फिर पर पर्सन पर न्यूटन है ना. अब वो हमने एक समझाने के लिए कर रखा है, that we have done, क्योंकि देखो एक प्रोटॉन के कारण क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही आता है ना. That's why एक प्रोटॉन के कारण क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है. That's why I have given this similarity like this कि एक पर्सन है तो वो कितने से खींच रहा है? 1 न्यूटन से खींच रहा है, राइट. सर लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वली होते हैं. हाँ इक्वली होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे देखा जा रहा है. आप फिर मेरी बात नहीं समझे, सुनो पहली बात मेरी बात. हर फिर से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ. हर ये जो जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, और इन सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स को है ना ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है. बट इनकी पोजीशन के कारण इन पे लगने वाला इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अलग अलग होगा, है ना. तो जैसे मान लो ये S है ना, ये S सबको रिपेल कर रहा होगा, राइट. ये वाला S सबको रिपेल कर रहा होगा, राइट, ओवर हियर. या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकी पोजीशन न्यूक्लियस से अलग अलग है, इसलिए इन पे लगने वाला जो रिपल्शन होगा इन कंपैरिजन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होगा. ठीक है, ये 1s सबसे अंदर है, ये सबको रिपेल कर रहा है. ये 2s इन सबको रिपेल कर रहा है. 2p 3s को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन 3s पे सबसे ज्यादा लग रहा है इन सबके कारण, है ना. 2p पे केवल इन दोनों के कारण लग रहा होगा, 2s पे केवल इसके कारण लग रहा होगा. तो यू कैन सी द रिपल्शन इज डिफरेंट. नाउ आई एम टेकिंग एनी इलेक्ट्रॉन, मैंने कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन. आई सेड कि उस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है और एक रिपल्सिव फोर्स है. वो वैल्यू कितनी आएगी वो हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में. नाउ आई सेड कि इस पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव. अट्रैक्टिव को कौन रिप्रेजेंट करता है? पूरे Z, कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस की तरफ है. रिपल्सिव कौन किसके कारण आता है? उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स. तो इनके कारण जो इफेक्टिव फोर्स आएगा वो क्या आएगा, है ना, जो भी फोर्स आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे Z इफेक्टिव. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि मान लो 11 प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और उनमें 4 प्रोटॉन का जो भी अट्रैक्शन है वो नलिफाई हो जा रहा है इधर. मान लो ये 4 प्रोटॉन के बराबर रिपल्शन लग रहा है. Then effectively I can say that 7 proton is attracting electron, right? Rather than 11, I can say 7 protons are attracting this electron. Yes? Yes, sir. That is effective nuclear charge. तो जो इलेक्ट्रॉन से जो रिपल्शन आने वाला है उसको हम चार्ज के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम पता लगा लेंगे कि भाई कितना इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज है जो
this electron, a particular electron is pulling towards the nucleus. Okay, that is going to called as effective nuclear charge. तो इसके बारे में next class में start करेंगे. अभी थोड़ा सा hint दे दिया है. We'll study that. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. चलो bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. sir. Bye.